يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في موضع آخر ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. معزز بزرگان دین، محترم بھائیوں اور دوستوں اور پردہ نشین خواتین امت، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام جیسی عظیم الشان دولت سے نوازا اور ہمیں مسلمان بنایا. بے شمار درود اور سلام ہوں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اسلام کی کرنوں کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلایا. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. محترم حضرات، آج اسلامی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے
ہمارے اندر ویسٹرن کلچر کی کئی ایک رسوم اور کئی ایک عادتیں ہماری زندگی میں رچ بس گئی ہیں، اور مغربی تہذیب یعنی کہ ویسٹرن کلچر کو ہم اپنی پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس قدر امپریس ہو چکے ہیں اور اس قدر مرعوب ہو چکے ہیں کہ اب ہمارا خیال یہ ہو گیا ہے کہ مغربی تہذیب جو کہے وہی صحیح ہے، اگر وہ غلط کہے تو وہ غلط ہے۔ تو اس طرح سے کئی ایک چیزیں مغربی تہذیب کی ہم اپنی زندگی میں اپنا چکے ہیں، شعوری طور پر ہو یا غیر شعوری طور پر۔ اس میں ایک ہے اپریل فول، جیسے اس کے علاوہ بہت سی چیزیں، جیسے ویلنٹائن ڈے وہ بھی گزر چکا ہے۔ اپریل فول اس ماہ کے 1-2 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اپریل فول پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں، قبل اس کے کہ میں اس ٹاپک کو چھیڑوں، اس موضوع پہ بات کروں، اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ویسٹرن کلچر کیا ہے، مغربی تہذیب کیا ہے، اس کا سرسری جائزہ لے لو۔ دیکھیے، ویسٹرن کلچر، مغربی تہذیب ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے، وہ کوئی مذہب نہیں ہے، وہ کوئی الہامی کتاب کو نہیں مانتی، وہ فکر رسولوں کو نہیں مانتی، وہ خدائی تعلیمات کو بھی نہیں مانتی۔ ویسٹرن کلچر اور اس کی جو سوچ ہے وہ اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ انسان اپنے اپنے مذہب پر عمل کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی وہ سوچ کو بھی اپنائے، اس کے جو خیالات ہیں اس کو بھی وہ اپنائے۔ ظاہر بات ہے ایک انسان اپنے مذہب پر بھی عمل کرے اور اس کے جو افکار و خیالات ہوتے ہیں مغربی تہذیب کے، اس کو بھی اپنی زندگی میں سمائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جس اسلام پر عمل کر رہے ہیں وہ اسلام ہمارا مخدوش ہو چکا ہے، مختل ہو چکا ہے، گڑبڑ آ گئی ہے اس کے اندر۔ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں چلتی، اس کے اندر بگاڑ آ گیا ہے۔ تو یہ چیز ہے مغربی تہذیب مغربی تہذیب، اور وہ انسان کو سب کچھ سمجھتی ہے، انسان ہی اہم ہے، وہ آیا صرف اسی لیے کہ وہ عیش و عشرت کرے، اور وہ جو بھی عمل کرے وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے، اس سے کوئی مواخذہ نہیں کرے گا۔ بس انسان آیا ہے عیش و عشرت کے لیے، اس کا عیش و عشرت کرنا اس کا ایک محبوب عمل ہے، اس کی ایک اولین صفت ہے اور اس کی بنیادی ضرورت ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ کون کہتے ہیں؟ ویسٹرن کلچر۔ بس دولت کماؤ، دولت کے ذریعے عیش و عشرت کو کیا ہے؟ فروغ دو۔ تو یہ چیز ہوتی ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اسلام کے پاس اصول ہیں، ان اصولوں کے مطابق انسان کو زندگی گزارنی چاہیے۔ اور اسی طرح سے مغربی تہذیب کے 3 بنیادی اصول ہیں۔ ایک، آزادی، نمبر 2 مساوات، ایکوالٹی،
नंबर 3 तरक्की। ये उसके 3 उसूल हैं और ये 3 उसूलों को वो एक आलमगीर कानून बना चुकी है, इंटरनेशनल लॉ, और उसको सारे ममालिक में फैलाया जा चुका है और सारे ममालिक की हुकूमतों को यह लाजिम करार दिया गया है इन 3 उसूलों पर काम करे। अगर कोई तंजीम या अगर कोई गिरोह इन चीजों में रुकावट बनता है, इन 3 चीजों में, तो वो कानूनन मुजरिम है। हालांकि ये 3 चीजें मसावात, तरक्की और ये जो 3 चीजें मैंने बताई, इस पर भी क्या है, इस्लाम खुलकर बात कहता है। आजादी, तरक्की, मसावात इस्लाम में भी है, लेकिन उसके अपने हुदूद हैं, उसकी एक हद है। आप आजाद हैं, लेकिन आजादी की एक हद है। मसावात, ये मसावात तो जग जाहिर है, इस्लाम एक मसावात का मजहर है। हर कोई मानता है कि इस्लाम एक मसावात का एक मजहब है और तरक्की भी की जा सकती है, लेकिन अपने हुदूद में रहकर अपनी अपनी हदों में रहा कीजिए, मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे। तो बहरकैफ इन 3 चीजों के जरिए लोगों को वो अपनी तरफ खींचती है, वेस्टर्न कल्चर अपनी तरफ खींचती है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस्लामी तहजीब में वेस्टर्न कल्चर में क्या फर्क है। कुछ फर्क है, बुनियादी फर्क है। पहला फर्क यह है कि इस्लाम में जो अथॉरिटी है, आला अथॉरिटी, ऊंची अथॉरिटी, वो अल्लाह ताला के लिए है। हलाल क्या चीज है, हराम क्या चीज है, कौन से काम कर सकते हैं, कौन से काम नहीं कर सकते हैं, इन तमाम का इख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला को है। अल्लाह ताला कुरान मजीद के जरिए कवानीन नाजिल कर देता है, उस पर अमल करना हमारे लिए जरूरी है। लेकिन मगरिबी तहजीब के पास इसका कोई उसूल नहीं है। वो सब कुछ इंसानों के हाथ में दे चुका है। इंसानी अक्ल जो फैसला करे वही सही है। यह गिरोह को दे दिया गया है जिसको पार्लियामेंट कहा जाता है। इंसानी अकल, वो जो गिरोह है, वो बैठकर फैसला करता है कि भाई कौन सी चीजें करना चाहिए, कौन सी चीजें नहीं करना चाहिए, कौन सी चीजें सही है, कौन सी चीजें गलत है। वो पार्लियामेंट, वो गिरोह जो फैसला करे वही सही है। जैसा कि हम देख रहे हैं आजकल हमारे जो पार्लियामेंट में जो फैसले हुए वक्फ बिल के ताल्लुक से, वो कितने इंसाफ पर मबनी हैं, ये सबको मालूम है। तो इंसान का कानून बेरहम होता है। इंसान के कानून में रहम नहीं होता, अल्लाह के कानून में रहम होता है। इंसान के कानून में इंसाफ नहीं होता, अल्लाह के कानून में इंसाफ होता है। इसी तरह से इस्लामी जो तहजीब होती है, इस्लामी तहजीब की जो रहनुमाई होती है, इस्लाम में जो रहनुमाई होती है, शरीयत के जरिए हासिल की जाती है। रसूल आते हैं, वो बतलाते हैं कि हमको जिंदगी कैसे गुजारना है। लेकिन जो मगरिबी जो तहजीब होती है, उन लोगों के यहां कोई रसूल नहीं, कोई मजहबी किताब नहीं, बस अपने बनाए हुए कानून होते हैं। और इस्लाम में जो कानून बनाया जाता है उसका माकस क्या होता है? कुरान व हदीस होता है। कुरान के जरिए और हदीस के जरिए उसको सामने रखते हुए
कानून बनाए जाते हैं। इसी तरह से इस्लामी तहजीब में अल्लाह ताला ने इंसान को खलीफतुल अर्ज बनाया है, यानी कि अल्लाह ताला ने इंसान को खलीफा बनाया। खलीफा के माने ये होते हैं कि अल्लाह ताला अपना नायब बनाकर इंसान को भेजता है दुनिया में। वो इंसान खलीफा जब बन जाता है तो अल्लाह ताला के कानून को लोगों पर नाफिज करे, अपने बनाए हुए कानून नहीं, अल्लाह ताला के बनाए हुए कानून को लोगों पर नाफिज करे, वो होता है खलीफा। लेकिन इस्लामी तहजीब के अलावा जो मगरिबी तहजीब होती है उनके अपने बनाए हुए कानून होते हैं, और इसी तरह से मगरिबी तहजीब जो होती है उनके यहां खुदा का कोई तस्वुर नहीं होता। इस्लामी तहजीब जो होती है अल्लाह ताला का एक तस्वुर होता है। वो समझते हैं कि अल्लाह ताला एक है, अकेला है, और दुनिया की जो सारी कायनात को, दुनिया के जो सारे निजाम को सिर्फ अल्लाह ताला ही चलाता है। ये हमारी इस्लामी तहजीब कहती है। तो बहरकैफ ये तीन फर्क हैं, ये बुनियादी फर्क हैं। इस फर्क के जरिए हम पहचानते हैं कि इस्लामी तहजीब क्या होती है, गैर इस्लामी तहजीब क्या होती है। तो मोहतरम हाज़रात, ये जो मगरिबी तहजीब है इसको फैलाने का काम सबसे ज्यादा मीडिया करता है। आज कौन सा मीडिया ले, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तो सबसे ज्यादा मगरिबी तहजीब को फैलाने का, गंदी फिल्में बनाना और इस्लाम के उसूल को सामने रखकर उसका मजाक उड़ाना, उस पर डिबेट करना, ये तमाम चीजें किसके जरिए होती हैं? मीडिया के जरिए होती हैं। आज तो बच्चा बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या नौजवान, सबके सब मीडिया के दिलदादा हो चुके हैं। हर एक के हाथ में मोबाइल है, सब लोग उसी को देखते होते हैं। तो आज ये चीजें ढकी छुपी नहीं है। बहुत से लोग इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं, 3 तलाक को लेकर या फिर दूसरे मसाइल को लेकर इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं। तो दूसरी चीज, जो मगरिबी तहजीब जो इस कदर आम हो चुकी है वो है ईसाई मिशनरीज जगह जगह स्कूल कायम किए हुए हैं, अपने स्कूल जॉब की ऑफर देकर और दौलत का लालच देकर क्या है, अपने दूसरे लोगों को अपनी तरफ खींचते रहती है। और अपने स्कूलों में उनका एक अपना निसाब होता है, सिलेबस होता है, उसके जरिए मुस्लिम बच्चों के दिलो दिमाग को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, बदला देते हैं। एक और जरिया है उनका, वो है रिफाही कामों में अपना पैसा खर्च करना, सोशल कामों में। इस तरह से गरीबों को अपनी तरफ खींचकर, मुसलमानों में जो गरीब तबका है उनको अपनी तरफ खींचकर, चाहे वो इलाज के जरिए हो या अपनी किसी मुसीबत को दूर करने के जरिए हो, किसी भी तरीके से क्या है, मुसलमानों को अपने दाम में फांस लेते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, अपने जो अफकार होते हैं, अपने जो ख्यालात होते हैं उनके अंदर डाल देते हैं। इस तरह का एक काम होता है। एक और काम उनके पास यह भी होता है कि वो तलबा, मुस्लिम तलबा जो ज़हीन व फतीन होते हैं, उनको मगरिबी ममालिक के कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में भेजकर उनकी जहन साजी की जाती है, उनके जहन को बनाया जाता है और उनके दिल में यह बात डाली जाती है कि जो नमाजें वगैरह जो तुम पढ़ते हो, ये तमाम चीजें क्या हैं, ये वक्त को जाया करने के बराबर है। ये जो ज़कात तुम देते हो, ज़कात और टैक्स में कोई फर्क नहीं है। और इसी तरह से जो तुम हज करते हो, उम्रा करते हो, जो कुर्बानियां तुम देते हो साल में, उन पर जो
पैसा लगता है, जो पैसा खर्च होता है, अगर वो पैसा तुम उन चीजों में खर्च करने के बजाय गुरबा में तकसीम कर देते, बेवा औरतों में दे देते, तो उनकी मदद हो जाती। तो इस तरह से उनके जहनों को बदला दिया जाता है। तो इकबाल ने बहुत ही अच्छे अंदाज से कहा, वो फाहा कश मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद उसके बदन से निकाल दो। तो मगरिब के लोगों ने सोचा कि लोगों के अंदर जो इस्लामी स्पिरिट भर चुकी है उसको निकाल दिया जाए, रूहे मोहम्मद उसके बदन से निकाल दो। फिक्रे अरब को देके फरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाज और यमन से निकाल दो। तो ये उनकी सोच है, ये उनका मंसूबा है कि मुसलमानों को कैसे अपनी तहजीब से करीब तर करना चाहिए। तो मोहतरम हजरात, तो ये जो तहजीबें हैं, हमारे मुसलमान इस कदर दिल दे चुके हैं, इस कदर उससे आशना हो गए हैं, वो समझते हैं कि ये भी एक हमारी जिंदगी की एक जरूरत है। तो जैसे मैंने कहा कि वैलेंटाइन डे है, और क्या कहते हैं, अप्रैल फूल है, मदर्स डे है, फादर्स डे, पता नहीं ऐसे कितनी चीजें हैं। और ये मगरबी तहजीब के अलावा हिंदुओं के पड़ोस में रह रहकर हिंदुओं की कई एक रसूम गैर शोरी तौर पर क्या है मुसलमान अपना चुके हैं। तो मोहतरम हाजरात, मैं कह रहा था कि अप्रैल फूल क्या है। अप्रैल फूल इनसाइक्लो ऑफ ब्रिटानिका के मुताबिक तकरीबन आज से 500 साल पहले स्पेन में जब मुसलमानों की हुकूमत खत्म हो गई, आपको मालूम होना चाहिए कि स्पेन में मुसलमानों ने तकरीबन 800 साल हुकूमत की। 800 साल हुकूमत किए, लेकिन आपसी इख्तिलाफात की वजह से मुसलमानों की हुकूमत वहां पर खत्म हो गई। ईसाइयों ने कब्जा कर लिया और मुसलमानों पर इतने जुल्म ढहाए कि मुसलमान अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने ईसाइयों की शबाहत को इख्तियार कर लिया, गले में सलीब डाल लिया, चर्च को जाना शुरू किए, यह बताने के लिए कि हम लोग क्या है, ईसाई है, मुसलमान नहीं है, अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन वहां की हुकूमत को अंदाजा था कि मुसलमान इस तरह की हरकत कर रहे हैं, अपने आप को क्या है ईसाई क्या है साबित कर रहे हैं, लेकिन वो मुसलमान हैं। तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि 1 अप्रैल को सारे के सारे मुसलमान गरनाता में जमा हो जाएं। गरनाता एक शहर का नाम है स्पेन में। गरनाता में जमा हो जाएं और हम उनको उनके पसंदीदा मुल्क को रवाना कर देंगे। उनको हर तरह यकीन दिलाया गया और हमदर्दी जतलाई गई कि हम तुम्हारे क्या हैं, हमदर्द हैं, सारे लोग जमा हो जाएं। तो मुसलमान उनकी बातों में आ गए, सारे के सारे लोग उस शहर में जमा हो गए 1 अप्रैल को, और उन सारे मुसलमानों को वहां की हुकूमत ने पानी के जहाज में बिठाया और निकल गए। बीच समंदर में पहुंचकर गहरे पानी में क्या उनको डुबो दिया और उस दिन से अपनी वो फतह का, अपनी जीत का जश्न मनाने लगे कि हमने क्या कर दिया, मुसलमानों को धोखा दे दिया, धोखे से हमने बुलाया और उनको गहरे पानी में क्या कर दिया, डुबो दिया। तो ये हमारी जीत हुई, हमारी फतह हुई, तो जश्न मनाने लगे। तो अप्रैल फूल उसी का एक जश्न है जिसके अंदर धोखा और झूठ होता है। एक और रिवायत है इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक कि 21
मार्च को मौसम चेंज होता है, बदलता है, गर्मी सर्दी रुखसत होती है, गर्मी की आमद होती है। तो इस तरह से मौसम चेंज होता है। तो ईसाई लोगों ने यह कहना शुरू किया कि भाई कि कुदरत हमारे से मजाक कर रही है, कुदरत हमारे से क्या कर रही है, मजाक कर रही है। इसलिए हम भी क्या करते हैं, कुदरत की जो बनाई हुई तखलीक है, जो मखलूक है, हम भी क्या है उनसे मजाक करते हैं। तो इस तरह से ये जो रस्म आई है मगरिबी तहजीब की अलगार है कि 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को जो भी हो, लोग क्या करते हैं, अप्रैल फूल मनाते हैं, यानी लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, झूठ बोलकर, धोखा देकर। ये रस्म वहीं से आई है। बहरकैफ इस्लाम की नजर में ये कोई पसंदीदा रस्म नहीं है। इस्लाम ऐसी चीजों से सख्त नफरत करता है और इसके बहुत से नुकसान भी हैं। आदमी जब किसी के सामने झूठ बोलकर उसका मजाक उड़ाता है और उसको तकलीफ देता है, यह गैरों की मुशाबहत होगी। गैरों की मुशाबहत इस्लाम में उसकी सख्त ममानियत आई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, यानी कि जो आदमी किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है वो आदमी क्या है, उसी में शामिल है, वो उसी में क्या होता है, शुमार किया जाता है। तो इस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर अक़वाम की मुशाबहत करने वालों को सख्त वईद सुनाई है और उनकी मुखालफत करने का हुक्म दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खालिफुल यहूद वन नसारा, यहूद और नसारा की आप मुखालफत करो। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को सूरज गुरूब होते वक्त और सूरज तुलू होते वक्त नमाज पढ़ने से रोका है। वजह क्या है? वजह उसकी यह है कि यहूदी हज़रात उस वक्त सूरज गुरूब होते वक्त, सूरज के तुलू होते वक्त नमाज पढ़ते हैं, वो उनकी इबादत का वक्त है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उन औकात में नमाज पढ़ने के लिए रोका है। इसी तरह से मुहर्रम का जो महीना होता है, 10वीं तारीख को हम जो रोजा रखते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर भी कहा कि यहूदी हज़रात मूसा अलैहिस्सलाम के जश्न में, यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फिरौन के पंजे इस्तिबदाद से नजात दिलाया, उसकी खुशी में वो लोग यहूदी हज़रात क्या है, एक दिन रोजा रखते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमको ज्यादा हक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमको ज्यादा, यहूदियों से ज्यादा हमको हक है रोजा रखने का, कि आप भी उस दिन रोजा रखिए, लेकिन यहूदियों की मुखालफत करते हुए 10 और 11 तारीख को आप रोजा रखें, या नहीं तो 9 तारीख को और 10 तारीख को रोजा रखें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखालफत करने का हुक्म दिया है, गैरों की मुशाबहत न इख्तियार करें। इसी तरह से इसके अंदर झूठ भी बोला जाता है। अप्रैल फूल में क्या है, झूठ भी बोला जाता है, तो यह भी एक गुनाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयतुल मुनाफिक सलास, कि मुनाफिक की कितनी निशानियां हैं? 3 निशानियां हैं। इज़ा कज़िबा, इज़ा हदसा कज़िब, जब वो बात करता है तो झूठ बोलता है, और जब वो अमानत दी जाती है उसको खियानत करता है और उसको धोखा देता है। तो ये मुनाफिक की निशानी, 3 मुनाफिक की निशानियां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हैं, और ये तीनों भी निशानियां अप्रैल फूल के मनाने वालों में होती हैं। जो लोग इसको मनाते हैं, ये तीनों चीजें उसके अंदर पाई जाती हैं। यहां तक कि झूठ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कदर रोका कि आजकल हम लोग है ना, बच्चों को अपने जानिब बुलाने के लिए, मरगूब करने के लिए क्या क्या झूठ बोल देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी रोका है। आज हम क्या उसको कोई मामूली चीज समझते हैं, उसको लाइट ले लेते हैं हम लोग। अब्दुल्लाह बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा उनके वालिदा ने उनको बुलाया कि आइए मैं तुम्हें कुछ देती हूं।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, क्या आप वाकई में कुछ देना चाहती हैं? उन्होंने कहा कि हाँ या रसूलल्लाह, मैं उस लड़के को खजूर देना चाहती हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखिए अगर तुम वो खजूर ना दोगी ना तो वो क्या झूठ में शुमार किया जाएगा। मोहतरम हजरात, एक मुझे वाक़या याद आता है कि एक मुहद्दिस हदीस हासिल करने के लिए दूर दराज का सफर किए, कई दिनों का सफर किए एक मुहद्दिस से मिलने के लिए, ताकि उनसे एक हदीस हासिल की जाए। जब उनके घर पहुंचे तो उस मुहद्दिस को उन्होंने देखा कि एक खाली टोकरे को अपने घोड़े को दिखाकर बुला रहे हैं, अपने घोड़े को बुला रहे हैं। हालांकि उस टोकरे में घास नहीं है, कुछ नहीं है। घोड़ा ये समझे टोकरे को देखकर शायद उसके अंदर मेरे लिए कुछ खाने की चीज मौजूद है, वो देखकर आ जाए। वो मुहद्दिस खाली टोकरे को दिखाकर उस घोड़े को क्या बुला रहे हैं। जब ये सफर करने वाले मुहद्दिस ने देखा कि ये मुहद्दिस जब घोड़े को धोखा दे सकते हैं तो हदीस के बारे में इनका क्या इल्म हो सकता है, ये सोचकर वहां से वो वापस चले गए, उनसे कोई हदीस नहीं दी। तो मोहतरम हजरात, ये छोटी छोटी चीजें जिसको हम झूठ नहीं समझते, यकीनन ये झूठ है, इसको हम लाइट नहीं लेना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसी तरह से धोखाधड़ी यह भी क्या है, अप्रैल फूल में आता है। मन गश्शना फलैसा मिन्ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हमको धोखा दे वो हम में से नहीं है। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार से गुजर रहे थे, देखा कि एक आदमी अनाज बेच रहा है, ऊपर क्या है सूखा अनाज है और अंदर क्या है गीला अनाज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर हाथ डालकर देखे तो क्या है, अनाज गीला निकला। पूछा कि तुमने ये क्या किया? उसने कहा कि बारिश आ गई तो अनाज भीग गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि देखो, अगर ये भीग चुका है तो इसको अलग तुमने क्यों नहीं किया? तो इस तरह से धोखा देना भी गलत है, और उसके अंदर रद्दुल फुल में ये सिफत पाई जाती है। एक और चीज इसके अंदर पाई जाती है, ईज़ार आसानी, यानी कि दूसरों को तकलीफ देना। अगर हम किसी को अप्रैल फुल मनाते हैं किसी के साथ, उसमें क्या होता है, जिसके साथ हम अप्रैल फुल बनाते हैं उसको तकलीफ पहुंचती है, चाहे वो तकलीफ बदनी हो, चाहे वो तकलीफ जहनी हो, तकलीफ तकलीफी होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। वो मुसलमान कौन है? मुसलमान वो आदमी है जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, जिसके जबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, चाहे वो जहनी अजियत हो या जिस्मानी अजियत हो। तो ये अजियत नहीं देना चाहिए जिसके अंदर दी जाती है। अच्छा, एक और चीज जो अप्रैल फुल में मनाई जाती है, वो चीज उसके अंदर एक और चीज क्या होता है कि उसके अंदर हंसी मजाक होता है। हंसी मजाक किसके लिए होता है? अपोजिट पार्टी के लिए, जिसके साथ अप्रैल फुल मनाया जाता है। सूरह हुजरात में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन्न। ऐ ईमान वालो, ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन, कि एक आदमी या एक ग्रोह दूसरे ग्रोह का मजाक ना उड़ाए। असा अन यकुनु खैरम मिनहुम, हो सकता है वो तुमसे बेहतर हो। वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुम, और खासकर यहां पर औरतों को भी खिताब करके फरमाया कि औरतें भी दूसरी औरतों का मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि ये चीज औरतों में भी थोड़ा ज्यादा पाई जाती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने यहां पर औरतों का नाम लेके कहा, वला निसाम असा यकुन्ना खैरम मिनहुन, हो सकता है दूसरी औरतें जिसका तुम मजाक उड़ा रहे हो ये तुमसे बेहतर होंगी। बहरकैफ ये जो तमाम चीजें आपके सामने मैंने बयान की हैं, आजकल कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले जो तलबा हैं
उनके अंदर ये जो मगरबी असरात हैं, उनकी जो तहजीबें हैं, वो लोग उसके दिलदादा हो चुके हैं और उसकी तरफ क्या है कशां कशां आगे बढ़ते हैं, उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना चुके हैं। लिहाजा ये तमाम चीजों से एक मुसलमान दूर रहना चाहिए और इन लोगों का ये जो मगरबी तहजीब के जो अलंबरदार हैं वो मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने के लिए इसी तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। इकबाल ने कहा था कि अंदाज निराले हैं, देते हैं सुरूर अव्वल, लाते हैं शराब आखिर। मैखाना यूरोप के अंदाज निराले हैं, लाते हैं सुरूर अव्वल, पहले खुशी देते हैं शराब आखिर। आखिर में क्या देते हैं? शराब देते हैं, यानी वो चीजें देते हैं जो इस्लाम ने हमें मना किया। लिहाजा हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि जितने भी गैर इस्लामी रसूमात है उससे बचना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को हर किस्म के गैर इस्लामी रसूमात से बचाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा वकुल्ल मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وأجل وأتم وأكبر۔ قوموا إلى الصلاة۔